नमस्कार आप सभी को। दिस इज योगेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैथम से. As you can see on the screen, today we are going to have Shall I Compare Thee to a Summer's Day. It is one of the leading sonnets written by William Shakespeare. Before we start the beautiful sonnet, let's have something introductory note about the greatest dramatist as acclaimed of the world. William Shakespeare was born in 1564 in England. He was not only a dramatist, a playwright, a poet, but also an actor. He is regarded even today the greatest writer in the English language. He was born in Stratford upon Avon, that is the name of the district, which was situated on Avon River. That's why sometimes we call William Shakespeare the Bard of Avon. If we talk about his writings, totally Shakespeare wrote 38 plays, 2 big long narrative poems and 154 sonnets and a variety of other poems. His plays have been translated into every major language of the world, and he even today is. Now let's begin the text of the sonnet. Before we start, let me make it clear to you that a sonnet is a short simple poem written in 14 lines. It is a special thing about the sonnet. It is written in 14 lines. It has a special set of rhyme scheme. It is of two types, Italian sonnet and Shakespearean sonnet, that we will discuss later on. First, let's start the poem. This poem or this sonnet is written by William Shakespeare to immortalize his male friend. The identity of that male friend is not clear. Who was he? Actually, as I told you before, that Shakespeare wrote 154 sonnets. Out of these 154 sonnets, he dedicated from 1 to 126 sonnets to some Mr. W.H. Who was that Mr. W.H. It is not clear even today. So, for now, I can just say that it is written in memory of or to immortalize. You can say it is addressed to Mr. W.H., who was male friend of William Shakespeare. In this sonnet, William Shakespeare presents before us the good qualities of his friend, and he says that he is better than a summer's day. I would like to tell you that summer season is symbol of beauty, comfort, and good nature in England. You know, England is a place of cold weather, and the persons of England welcome summer season as good season. So a good summer day is considered very good in
England. But Shakespeare only begins his poem, and in the first sentence he just tries try to compare that should I compare you with a summer's day. But in rest of the poem he throws out the idea of comparing him with summer, because he says that your qualities are far more better than a summer's day. So Shakespeare says that he will not compare his friend to a summer's day. चलो अपन अब पोएम शुरू करते हैं. Let's start. Shall I compare thee to a summer's day? It is a rhetorical question. It is a special figure of speech or a device that poet uses in the first line, or says that क्या मैं आपकी तुलना एक खूबसूरत और सुहाने समर सीजन के दिन से करूं? But in rest of the stanza, in the forthcoming 3 lines, he throws away this idea, and वो हमारे सामने रीजन्स प्रस्तुत करते हैं कि क्यों मुझे आपकी तुलना एक समर्स डे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ तो उससे बहुत अच्छी हैं, तो आपकी उससे तुलना करनी अच्छी नहीं होगी. जैसे दूसरी लाइन अपन पढ़े, दाउ हियर मीन्स यू, आर्ट जो लिखा हुआ है इट स्टैंड्स फॉर आर. दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. मैं आपकी तुलना समर्स डे से नहीं करूँगा क्योंकि आप तो उससे ज़्यादा लवली हो और उससे ज़्यादा टेम्परेट हो. टेम्परेट हियर मीन्स मोर मॉडरेट, मोर जेंटल और evenly tempered. Summer season is not evenly tempered as you are. समर सीज़न आपके जितनी लवली नहीं है और आपके जितने समान अच्छे गुणों वाली नहीं है. समर सीज़न में कभी ऐसा होता है, क्या होता है ये तीसरी लाइन में अपन देखते हैं. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. The darling birds here stands for beautiful birds that bloom in season of summer or in the month of May. तो तीसरी लाइन में वो क्लियर करते हैं कि समर सीज़न है वो इवनली टेम्पर्ड कैसे नहीं है. जैसे कभी कभी समर सीज़न में रफ विंड्स बहती हैं जो कि मई महीने में या समर सीज़न में खिलने वाली खूबसूरत छोटी छोटी कलियों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें हिला देती हैं, उन्हें तोड़ देती हैं. चौथी लाइन पे चलते हैं. एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे. समर्स लीज हियर स्टैंड्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और चौथी लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि और कमी समर में ये है कि वो कुछ समय के लिए आती है. साल में एक निश्चित समय के लिए आती है और चली जाती है. लेकिन आपकी जो ब्यूटी है, आपके जो गुण हैं, वो इतने शॉर्ट लिव्ड नहीं है, किसी लीज पे लिए हुए नहीं हैं, ये तो परमानेंट गुण हैं आपके. इन 3 लाइनों को पढ़ने के बाद में अपन समझ सकते हैं कि हाउ शेक्सपियर ट्राइज टू प्रूव दैट माई फ्रेंड इज़ बेटर देन ए समर्स डे. सो आई will not compare him to a summer's day. Let's move on to the second stanza or the second quatrain. आगे की ओर इन 4 लाइनों में भी हम समर के अवगुण पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी
the drawbacks of summer. So let's begin. Sometimes too hot, the eye of heaven shines. अगला अवगुण समर सीजन का विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है समर सीजन में कि द आई ऑफ हेवन, जो स्वर्ग की आँख है, इट स्टैंड्स फॉर सन, द सन। कहते हैं कभी कभी समर सीजन में सूर्य बहुत तेज चमकता है और बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। अगली लाइन में, एंड ऑफन इज हिज गोल्डन कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उसका सुनहरा चेहरा है, वो डिम पड़ जाता है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। कभी कभी अपन देखते हैं कि समर सीजन में बादल आ जाते हैं और उनकी वजह से सूर्य दिखाई ही नहीं देता है या फिर वो डिम पड़ जाता है। तो ये एक और अवगुण हो गया, एक और ड्रॉबैक हो गई जो समर सीजन की होती है। तीसरी लाइन पे चलते हैं, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। तीसरी लाइन में विलियम शेक्सपियर कहते हैं एवरी फेयर, हियर एवरी फेयर स्टैंड्स फॉर एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स। As you can see on the screen that I have written difficult words under the text of the poem. You can later on see in my PDF. वो कहते हैं कि हर ब्यूटीफुल थिंग है, उसकी ब्यूटी है, वो एक निश्चित समय के बाद में डिक्लाइन होने लगती है, या यूँ कहें कि कम होने लगती है। बाई चांस कैसे कम होती है? बाई चांस, चांस हियर स्टैंड फॉर सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट और सम काइंड ऑफ मिस हैपनिंग। वो या तो किसी मिस हैपनिंग की वजह से कम हो जाती है या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स। नेचर्स चेंजिंग कोर्स मीन्स द पासिंग ऑफ टाइम। विद द पासिंग ऑफ टाइम नेचर की चलने की एक निश्चित अपनी गति होती है, एक उसका कोर्स होता है जिस पे वो चलती रहती है। तो उस नेचर के चेंजिंग कोर्स की वजह से या फिर किसी मिस हैपनिंग की वजह से एवरी ब्यूटीफुल थिंग है, उसकी ब्यूटी है वो घटती जाती है। सो ये चीज़ें मेरे फ्रेंड में नहीं है, तो मुझे मेरे फ्रेंड की तुलना समर्स डे से नहीं करनी चाहिए। नीचे इस स्टैंजा की नीचे की 2 लाइनें हैं, वो तो समर से अतिरिक्त भी लागू होती हैं। ऊपर की 2 लाइनें हैं वो तो समर सीजन पे लागू होती हैं, लेकिन नीचे वाली 2 लाइनें वो तो अतिरिक्त भी लागू होती हैं। एक्चुअली कुल मिला के कवि ये कहना चाहता है, विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि मेरा फ्रेंड है, उसकी तुलना समर्स डे से नहीं की जा सकती, और अन्य ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनसे भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी ब्यूटी है वो भी दे आर सब्जेक्टेड टू डिक्लाइन, बट माई फ्रेंड्स ब्यूटी इज़ नॉट ए सब्जेक्ट टू डिक्लाइन। लेकिन मेरे दोस्त की जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, उसके जो गुण हैं, वो कभी कम नहीं होने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वार्टराइन। इसमें वो कहते हैं, ऊपर वाला स्टेंजा से लिंक करते हुए अपन इसे पढ़ते हैं। जैसे ऊपर वाले स्टेंजा के लास्ट 2 लाइनों में उन्होंने कहा कि एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स डिक्लाइंस आफ्टर सम टाइम, बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड। एटर्नल समर मीन्स एटर्नल ब्यूटी। शेक्सपियर कहते हैं कि एवरी ब्यूटीफुल थिंग है, उसकी ब्यूटी है वो निश्चित टाइम के बाद में कम होने लगती है, लेकिन आपकी जो सारस्वत या हमेशा रहने वाली ब्यूटी है, समर हियर स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, वो कभी कम नहीं होगी। शैल नॉट फेड, फेड यानी कम होना, मंद होना। नोर लूज possessions of that fair that thou owest, ost means have, और ना ही आपकी ब्यूटी कभी कम नहीं होगी, और ना ही इस सुंदरता रूपी खजाने को जो आपके पास है उसको कोई आपसे ले पाएगा।
ना ही आप इस खजाने को कभी खोओगे, या यूँ कहें कि आपसे ये खजाना कोई नहीं ले पाएगा। आपकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहेगी। नोर शैल डेथ ब्रेक दाउ वंडरेस्ट इन हिज सैड। और ना ही डेथ कभी आपकी सुंदरता को धूमिल कर पाएगी, या यूँ कहें कि ना ही डेथ है वो कभी आपकी सुंदरता को ख़त्म कर पाएगी। यद्यपि पोएटिक लैंग्वेज में यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसा बनता है कि ना ही डेथ कभी घमंड कर पाएगी कि उसने आप पे भी अधिकार कर लिया, या आपकी सुंदरता पे भी अधिकार कर लिया, क्योंकि वो आपकी सुंदरता को ख़त्म नहीं कर पाएगी। वो अपने आगोश में आपको नहीं ले पाएगी, अपनी सैड में आपको नहीं ले पाएगी। वो किसी से ये नहीं कह पाएगी कि मैंने विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड को भी अपनी छत्र छाया में ले लिया, क्योंकि वो नहीं ले पाएगी। आपकी सुंदरता ऐसी है। When in eternal lines to time thou growest, क्यों नहीं ले पाएगी? क्योंकि मैंने आपके लिए ये खूबसूरत सी पोइम लिख दी है, और इस पोइम में मैंने आपके गुण हैं, आपका जो कैरेक्टर है, इसको इमोर्टलाइज कर दिया है। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपकी ब्यूटी बढ़ती जाएगी, आपका गुणगान है वो बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा। When in eternal lines means the lines of this poem. Now let's move on to the couplet that is written below. This is the special characteristics of the sonnet of William Shakespeare, that it is written in 3 quatrain of 4 line each and a couplet of 2 line, rhyming each other. So long as man can breathe or eyes can see. Here in this line Shakespeare appears to be professing that so long as man can breathe, जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे, सांस ले पाएंगे और आंखें देख पाएंगी, so long lives this, जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे और आंखें रहेंगी, देख पाएंगी, तब तक मेरी ये पोइम भी रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और जब तक मेरी पोइम रहेगी, जब तक इंसान रहेंगे, तो वो मेरी पोइम को पढ़ेंगे, और वो मेरी पोइम को पढ़ेंगे तो आपको जीवन मिलता रहेगा। आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे जाते रहेंगे, और आपकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहेगी। तो इसी के साथ अपन पोइम के अंत तक पहुंचते हैं, और I hope you enjoyed the poem. Thank you.